हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेक्शन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्या क्या हिस्ट्री रही है। इसका मतलब पहले किस साइंटिस्ट ने सोचा कि एटम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, और फिर उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे ढूंढा गया, ये सब बातें हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो बहुत समय पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन, और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या होती है ये थ्योरी, क्या है इनके मेन पोस्टुलेट्स, आइए इस एनिमेटेड वीडियो को देखते हैं और समझते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। It was around the first decade of the 19th century that a chemist and a physicist from England named John Dalton was successful in answering many questions. He proposed a theory which was then known as the Dalton's atomic theory. With this theory, many concepts regarding matter, composition of matter, atoms, and even combinations of atoms resulting in compounds were better understood. Okay, let's first take a very quick look at the 6 major postulates of his theory. First, he said that all matter is made up of very tiny particles called atoms. Secondly, he suggested that atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Third postulate was atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Similarly, fourth postulate was that atoms of different elements have different masses and chemical properties. Fifth postulate stated that atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compounds. And lastly, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Let us now understand each postulate one by one by taking the same example of elements A and B giving rise to compound C. The first point stated that all matter is made up of very tiny particles called atoms. It means that when we go on dividing matter into smaller and smaller sections, what we get at the end is atoms. So can we say that elements A and B are made up of atoms? Yes, in fact, compound C is also made up of atoms that have combined together. So the first postulate was very easy to understand. The second postulate was that atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Now, what do we mean by this? Yes, it means that atoms are like the fundamental units. Dividing them further is not possible. Also, in a chemical reaction, atoms may combine together to form new units. However, no new atoms can be created and existing ones cannot be destroyed. So in this case, the atoms of element A and B are just combining to form compound C. So can we say that no new atoms are formed in this case? Yes, and similarly, no atom is destroyed. Let's move on to the third one now. The third postulate states that atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. If we zoom into the element A, we find all the atoms that make up element A are just the same. And in what sense are these same? The atoms have identical mass as well as chemical properties. In simple words, the third postulate states that all atoms of a given element are identical. And does this explain the fourth postulate too? Yes, the fourth postulate states that atoms of different elements have different masses and chemical properties. So are we able to notice that atoms in element A are different from those in element B? Absolutely. And in what sense are they different? Atoms in element A and B have different masses and even different chemical properties. In simple words, it states that atoms of different elements are different. The fifth postulate states that atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compounds. Now, what do we mean by this? In this chemical reaction, we find elements A and B reacting and giving us the compound C. If we observe well, a unit of compound C has 2 atoms of element A and 1 atom of element B, right? So aren't these whole numbers? Yes, this means that in any compound, the elements are always present in a ratio which comprises of whole numbers.
you will not find half or 3/4 atom combining with the other. In case of water, we always have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom combining to form 1 unit. In 1 unit of carbon dioxide, we have 1 carbon and 2 oxygen atoms. The same holds true for all compounds. The number of atoms of a particular element in a compound will always be a whole number. Now for the last one. The 6th postulate states that the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. The same explanation that compound C has 2 atoms of element A and 1 of element B makes us understand this. Yes, if we scan compound C, we will always find 2 atoms of element A and 1 atom of element B in a single unit. And this is applicable for all compounds. We've already looked at 2 examples, water and carbon dioxide. In case of 1 unit of water, we always have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. And in a single unit of carbon dioxide, we have 1 carbon and 2 oxygen atoms. Carbon monoxide has 1 atom of each, that is carbon and oxygen. While 1 unit of ammonia always has 1 nitrogen atom bound to 3 hydrogen atoms. So the number of atoms will always be constant in a unit of a particular compound. In a nutshell, all these postulates help chemists to further understand behaviors of elements and the compounds formed from them. But for understanding these elements and compounds, knowing the concept of atoms is necessary. आपने देखा कि डाल्टन ने बताया कि एटम ही किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यही इस थ्योरी का मेन ड्रॉबैक है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली 2 सब्सटेंस के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन ये क्यों जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, इस बारे में ये थ्योरी बताने में फेल हो जाती है। और अब इसके बाद नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम क्रुक्स और इन्होंने डिस्कवरी करी कैथोड रेज की। तो अब हम बात करते हैं कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई। विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा और बताया कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और ये रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। आइए इस एनिमेटेड वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। William Crookes discovered cathode rays when he was studying electrical discharge in gases, whereas J.J. Thomson discovered that the cathode ray consists of negatively charged particles called electrons. Production. Cathode rays are produced in a discharge tube. Hence, the discharge tube is generally referred to as the cathode ray tube. The cathode ray tube is a partially evacuated glass tube with cathode and anode placed at the ends of the tube. A vacuum pump is used to partially evacuate the tube. The cathode is connected to the power source with the help of a clip. The tube is supported on a stand. It was found that electric discharge through gases took place only when the pressure inside the tube is lowered and the potential difference between the electrodes was high. To produce cathode rays, high potential difference of 10 kV to 20 kV is applied between the electrodes and the pressure is reduced to 0.0001 millimeter of mercury by means of a vacuum pump. A glow is seen on the walls of the glass tube. The bright fluorescence glow is due to the striking of the rays emitted by the cathode. These rays are cathode rays. Properties of cathode rays. Cathode rays travel in straight lines. When an opaque object is placed in the path of the cathode rays, a shadow is cast on the glass wall opposite to the cathode. This shows that cathode rays travel in straight lines. Cathode rays consist of negatively charged particles. The rays deflect towards the positive plate when the tube is exposed to an electric field. This is because the negatively charged particles in the cathode rays get attracted towards the positive plate. Cathode rays are deflected by the magnetic field. When the tube is exposed to a magnetic field,
The cathode rays follow a curved path, showing that they are deflected by the magnetic field. Cathode rays travel with a high speed almost equal to the speed of the light and hence possess kinetic energy. When cathode rays are made to fall on a paddle wheel, the wheel starts rotating, showing that the rays possess kinetic energy. कैथोड रेस की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन, और इन्होंने अपना एक मॉडल बनाया जिसमें बताया कि एक एटम वाटरमेलन की तरह होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसी तरह से एम्बेडेड होते हैं जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं। क्या होता है मॉडल, आइए देखते हैं इस एनिमेटेड वीडियो को। J.J. Thomson proposed that an atom was a solid sphere of positively charged material and the negatively charged particles, electrons, were embedded in it like the seeds in a watermelon. The red edible part of the watermelon is compared with a positive charge in the atom. Thomson stated that an atom consists of a sphere with positive charge. Electrons are embedded in that sphere. The atom as a whole is electrically neutral since the negative and positive charges are equal in magnitude. Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, this was proved wrong by the other scientists. जे थॉमसन ने यह तो कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होंगे, लेकिन वो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता क्या है ये बताने में जे थॉमसन की थ्योरी फेल हो जाती है। इसके कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था गोल्डस्टीन, और इन्होंने डिस्कवरी करी एनोड रेस की। कैसे करी इन्होंने डिस्कवरी, आइए इस एनिमेटेड वीडियो को देखकर समझते हैं। Goldstein in 1886 used a perforated cathode in a discharge tube. On passing the electric discharge at low pressure, he observed a new type of rays carrying a positive charge streaming behind the cathode. These rays were named as anode rays or canal rays. Properties of anode rays. The charge to mass ratio of the particles in the anode rays was found to depend upon the nature of the gas in the discharge tube. It was observed that E by M ratio was maximum when hydrogen gas was taken in the discharge tube. This indicated that the positive ions formed from hydrogen are lightest. These lightest positively charged particles were named protons. एनोड रेस की डिस्कवरी के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड, और इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जिसके थ्रू उन्हें बताया कि एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं। कैसे हुआ था ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसे समझने के लिए इस एनिमेटेड वीडियो को देखते हैं। The plum pudding model of an atom was one of the most widely accepted models all over the world for understanding the structure of the atom. However, several experiments performed by scientists to study the atomic structure showed astonishingly different results. They were contradicting the plum pudding model. This led many scientists all over the globe to reconsider the structure of an atom and study it again. Around the year 1911, a British physicist, Ernst Rutherford, carried out the famous gold foil experiment. He did this to understand the structure of an atom. The experiment was carried out by Rutherford along with Hans Geiger and Ernest Marsden. The experiment he performed was a breakthrough in the field of chemistry which helped him understand the structure of an atom in a more accurate manner. This is how the setup of his experiment looked like. As we can see here, he used a source of alpha particles locked in a lead container with a very small slit. This ensured that the alpha particles only came out through a small opening and travelled in a straight line. But why did he select alpha particles in the first place? Well, the alpha particles were having high energy and were heavier as well. So if we say the atom is like a pudding of positively charged particles with electrons embedded in it, then the particles will pass straight through it. This is obvious because the heavier particles will pierce through the lighter pudding structure of the atom and pass through it. This is what Rutherford thought. For this reason, their greater mass and energy compared to the protons made him choose alpha particles for the experiment. Next, he used a very thin gold foil on which the alpha particles would bombard. Why did he choose a gold foil? Well,
A really thin gold foil was estimated to contain approximately 1000 atoms. Lesser the atoms, more convenient the experiment would be. Lastly, are we able to locate this circular band with a gap here? What could this be? Well, this is the screen. A fluorescent screen that would help us detect the radiation. That means the screen will glow or emit fluorescent light whenever alpha particles will hit it. So this is how the track of alpha particles can be traced. Now we're all set to understand how the experiment worked. The alpha particles were emitted from the element present in this box. These directly hit the gold foil. Now what should happen ideally? As we know, the Thomson's model suggested that an atom is a sphere of positive charge with negative electrons embedded inside it. That means it is expected that the alpha particles will pass right through the atoms and hit the detector straight. And why so? Because the mass of alpha particles is heavier than the mass of positive charges. That means they should directly hit the atom and move ahead through it. Only a very small deviation would probably be acceptable in this case. But is this what he observed? Not really. He was astonished to get unexpected results. What results did he get? He found that most of the fast-moving alpha particles passed straight through the foil and hit the detector. However, some particles got deflected by small angles. And lastly, to his astonishment, few alpha particles also rebounded. Now, how can this be possible? These three observations made Rutherford think that the plum pudding model is not really correct. Let us take a simplified example to understand the inferences first. Let us imagine that we have a ball made up of cotton. The cotton in the ball is very sparsely distributed and has an extremely tiny circle or sphere located at the center. This sphere is quite hard and dense. So hard that it can even resist a bullet shot against it. Now what will happen if you shoot many bullets across this cotton ball? Most of them will travel straight through the cotton surface. What will happen if a bullet hits the edge of the central heavy mass? In this case, the bullet will slightly change their path and get deviated. So looking at the size of the central mass, it's obvious that only some of the bullets will get deviated. Lastly, what happens when a bullet hits the center directly? Needless to say, it will bounce back, because we know that the central dense mass is too hard for the bullet to pass through. So very few bullets will bounce back. This is analogous to what Rutherford had inferred about the atomic structure. His first conclusion was that most of the space inside an atom is empty. This is because most of the alpha particles could easily pass through the atoms and hit the detector straight. Now, if most of the space is empty inside an atom, then where is the positive charge located? Well, that's the second conclusion. The positive charge is compactly packed in a tiny entity. This occupies an extremely small space inside the atom. Now, why did he think so? Let's go back to our cotton ball and bullet example. Can you recall the second and the third case? Yes, the bullets get deviated on hitting the tiny sphere of the edge and they will rebound when they hit the center. Same explanation holds true for this. A few alpha particles get deviated. That means there is a possibility that these hit the edge of the positive center. Yes, and one more possibility is that they get deviated because the positive center repels the alpha particles as they're also positively charged. Also, a very small number of alpha particles rebounded. That means there is a possibility that these alpha particles had directly hit the positive center. But since the number of these rebounding particles is too small, it explains that the volume occupied by the positive center is also very small. If the space occupied would have been big enough, then the number of alpha particles bouncing back would also be greater. So let's say there are gold particles in the foil. He found that most of the rays pass straight through the atoms. A few rays change their path and get deflected. Lastly, very few particles bounce back. These results compelled Rutherford to come up with a new nuclear model. Let's have a look at the hypothesis put forward by him.
Firstly, there's a positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. Secondly, the electrons revolve around the nucleus in circular paths. Thirdly, the size of the nucleus is very small compared to the size of an atom. However, theoretically, there were many flaws in the hypothesis. रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर, और उन्होंने अपनी बात रखी जिसे बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या होते हैं नील बोर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स, आइए इस थ्योरी से समझते हैं। Rutherford's atomic model was quite commendable when it came to explaining the structure of atoms. However, it was not very appropriate theoretically. And why are we saying so? We know that any charged object which revolves in a circular motion gains acceleration gradually. Similarly, if the electron is moving fast in a circular path, then it will also gain acceleration. And on gaining acceleration, it's bound to liberate energy in some form. Now, if it continuously keeps radiating energy, then ultimately all the energy of the electron will get over and it will fall into the nucleus. This would result in high instability of the atom. But wait a second, all these things do not happen in an atom. And how do we know this? Because in nature, all the atoms are stable. That means the hypothesis put forth by Rutherford was also incorrect? Not really. The hypothesis just needed slight modifications. These were made by the next legendary scientist in our list called Niels Bohr. He made a few additional explanations to describe the atomic structure. The postulates put forward by Niels Bohr were as follows. Firstly, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Secondly, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Now, these points definitely tell us why an atom is so stable. But what exactly are these paths or orbits in which the electrons revolve around the nucleus? Let's understand with an example. Do you know how our solar system is? Yes, it appears somewhat like this. Now here, the sun is stationary at the center while the planets revolve around it. But have you noticed that the planets always revolve in fixed paths? We never find any planet jumping to a different path all of a sudden, right? They always encircle the sun in defined paths. In a similar way, we have the atomic structure. The nucleus acts like the sun located at the center. And the electrons are like planets which revolve in fixed, defined orbitals. These electron orbitals are referred to as shells or energy levels. Now, the name energy levels gets us to an important concept. Niels Bohr suggested that the electrons revolving in these orbitals do not radiate energy. Now, this is justified when we use the term energy levels, because it indicates that each shell has got a defined energy level. That means when the electrons revolve in these shells, they do not liberate any form of energy. And how do we name these shells to indicate their position? It's simple. Beginning from the one near the nucleus, we name them as the K shell, L shell, M shell, N shell, and so on. Yes, K, L, M, N, and so on. And what if we want to number them? In that case, we use the letter N in lowercase and write them as N equals 1, N equals 2, N equals 3, and so on, beginning from the one next to the nucleus. So we can name them alphabetically, or we can even number them. With all these theories and points known, do we now know the structure of a typical atom completely? The nucleus contains positive protons and the electrons revolving around in fixed orbitals. Is that how an atom is structured? Not really. We still have one more subatomic particle left. And what and where could it be? Let's find that out. It was around the year 1932 when a famous English physicist, Sir James Chadwick, found the third subatomic particle. He found that the particle had a mass almost equivalent to that of the proton. And what about its charge? Astonishingly, it had no charge. Yes, the particle was neutral. The particle was later named as neutron, denoted by the letter N.
Thus, now we have the complete design of an atom. In the center lies the nucleus having positively charged protons and neutral neutrons, while the negatively charged electrons revolve in fixed orbitals around the nucleus. और अब हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम के मेन पोस्टुलेट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करते हैं नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। नील बोर ने बताया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्या पोजीशन होती है। तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स होते हैं और इन सर्कुलर पाथ्स को शेल्स कहते हैं। इनका एक और नाम ऑर्बिट्स भी होता है। नील बोर ने इन शेल्स को के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक नंबर दिया, और या फिर इनको हम नंबर से बुला सकते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये शेल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उतने ही शेल्स भरे जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास होते हैं। सेकंड पॉइंट को समझते हैं। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। हर एक शेल की एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी होती है और इसीलिए इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है, क्योंकि हर एक शेल एक सर्टेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इन्हें एनर्जी लेवल्स के नाम से भी बुलाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में तभी घूम सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस शेल की एनर्जी के इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स हैं। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल में तभी रोटेशन कर सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस शेल की एनर्जी के इक्वल होगी। इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में तभी घूम सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस फोर्थ शेल की एनर्जी के इक्वल होगी। इसका मतलब हुआ एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी एनर्जी पहले से फिक्स होती है। फिक्स वर्ड के लिए एक और नया वर्ड है, इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम दोनों एक दूसरे के साथ ही कांस्टेंट होते हैं। अगर किसी रिएक्शन में या किसी प्रोसेस में एनर्जी कांस्टेंट होती है तो डेफिनेटली उसमें मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। तो हमें कहना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of h upon 2 pi. In other words, we can write it as mvr is equal to n times of h upon 2 pi, where n का मतलब हमें पता होना चाहिए। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। कोई भी होल नंबर हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आता है। अब हम फिफ्थ पॉइंट सीखते हैं। ये एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स हैं। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है एंड सो ऑन। जब कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होता है तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसी तरह 6 पॉइंट समझेंगे। ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन। जब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शेल में है इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और अगर इसे कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो एक्साइट होकर ये किसी हायर स्टेट में चला जाएगा और वहां जाने के बाद अब इसकी स्टेट बोली जाती है एक्साइटेड स्टेट। 7th पॉइंट में हम बात करते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। लेट्स से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फोर्थ शेल में आ गया है।
जिसे हमने एक्साइटेड स्टेट्स के नाम से बुलाया है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो चुका है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से फार अपार्ट हो गया है और इसीलिए ये अनस्टेबल हो गया है। बीइंग अनस्टेबल, अब ये वापस आता है, तो वापस आने के लिए अगर इसे लोअर शेल में वापस आना है तो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। ये जो रिलीज एनर्जी होती है इसे हम डेल्टा ई के नाम से बुलाते हैं, एंड दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये एनर्जी का डिफरेंस जिसे हम E2 माइनस E1 से डिनोट कर रहे हैं, दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू hc by lambda, और वी कैन राइट इट एज डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू। यहां से हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम नील बोर थ्योरी के 8 पॉइंट्स को पढ़ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से जब लोअर शेल पे आता है तो रेडिएशंस कैसे निकालता है और उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होती है। अब इसके ड्रॉबैक को समझते हैं। ऑल्दो नील बोर थ्योरी ने इससे पहले आई जितनी भी थ्योरीज थी उन सब में करेक्शन किए। अभी तक की कोई थ्योरी ऐसी नहीं बनी थी जिसने रेडिएशंस के बारे में बताया हो, लेकिन इस थ्योरी ने रेडिएशंस का रीजन भी बताया। लेकिन तब भी इस थ्योरी के अंदर ड्रॉबैक है, क्योंकि नील बोर ने कहा कि ये थ्योरी सिर्फ उन्हीं स्पीशीज पर एप्लीकेबल होगी जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली। अब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन होते हैं? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यस, ये थ्योरी हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। इसी तरह हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो बन जाएगा हीलियम प्लस। ये थ्योरी हीलियम प्लस पे भी अप्लाई हो सकती है। इसी तरह लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो बन जाएगा लिथियम 2 प्लस। सिमिलरली बेरिलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएं तो बन जाएगा बेरिलियम 3 प्लस। ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, एंड दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो ये इस थ्योरी का पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक समझते हैं। दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू नील बोर थ्योरी, एटम के पास फिक्स्ड कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स होते हैं। सर्कल एक 2D फिगर है और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऑर्बिटल में होता है, जबकि ऑर्बिटल एक 3D फिगर होती है। इसका मतलब ये थ्योरी एटम का 2D मॉडल बताती है, जबकि एटम एक 3D फिगर की तरह कंसिडर होता है। थर्ड ड्रॉबैक को समझते हैं। इस थ्योरी में हमें रेडिएशंस के बारे में पता लगता है, लेकिन जब इन रेडिएशंस को हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये रेडिएशंस फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट, और ये थ्योरी स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। इसी तरह से फोर्थ ड्रॉबैक को समझते हैं। जब इस रेडिएशन को हम पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से तो ये रेडिएशंस मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट, और ये थ्योरी ज़ीमैन इफेक्ट बताने में भी फेल हो जाती है। According to this theory, we cannot explain dual nature of matter. इसका मतलब ये थ्योरी de Broglie इक्वेशन और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो जाती है। और अब हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को तभी परमिशन मिलती है जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस शेल की एनर्जी के इक्वल होगी। इस एनर्जी को कैसे निकालते हैं? En is equal to minus 2.18 into 10⁻⁻18 into Z square divided by N square। इसकी यूनिट होती है जूल्स पर एटम। यहाँ पे आप याद रखें कि Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और N का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। इसी तरह हम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल में घूमता है, उस शेल की रेडियस को निकालने का फॉर्मूला है Rn is equal to R0 into N square by Z। इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम।
वेयर। Rn का मतलब होता है रेडियस ऑफ nth शेल, n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और r0 का मतलब होता है बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस की वैल्यू पहले से फिक्स है, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो फॉर्मूला अब चेंज हो जाता है, दैट इज Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड और इसकी यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम। अब इसी तरह हम निकालते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻10 इंटू जेड बाय एन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जेड का मतलब एज यूजुअल एटॉमिक नंबर है और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी डिफरेंस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स से इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में है, तो इस लोअर एनर्जी को हम E1 से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और किसी हायर स्टेट पे आता है, उसकी एनर्जी को E2 से डिनोट कर रहे हैं, that is -2.18 into 10⁻⁻18 into z square डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर। एनर्जी डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इस फॉर्मूले में दोनों एनर्जी की वैल्यू रख देते हैं। इसका मीनिंग हुआ -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर माइनस -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर। दोनों वैल्यू को हम ब्रैकेट में रख देंगे। इसका मतलब होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर। माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो जाती है। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं 2.18 को, इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल्टा ई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ जाता है। जब हम यहां से डेल्टा ई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तब इस वैल्यू को हम इक्वेट करते हैं एच न्यू के, और हम डेल्टा ई को इक्वेट कर सकते हैं एच सी बाय लैम्डा के, और यहां से हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। और अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। नील बोर ने बताया कि लेट्स से ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, इसी तरह ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ शेल है, ये सिक्स्थ शेल है, ये सेवेंथ शेल है, ये एट्थ शेल है, और ऐसे करते करते ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर शेल है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल पे जाता है तो वहां जाने के बाद अनस्टेबल हो जाता है, और बीइंग अनस्टेबल वो वापस आता है। तो वापस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। लेट्स से हम मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल पे 2 पे गया है और 2 से 1 पे आता है। तो इस ट्रांजिशन को हम कैसे दिखाएंगे। जब 2 से 1 पे आता है तो इसे हम इस एरो से दिखा रहे हैं, तो ये एक ट्रांजिशन की तरह काउंट होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन 3rd से 1 पे आता हो, तो इसे इस तरह से दिखाया जाएगा। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पे आता हो तो इसे इस तरह दिखाएंगे। इसी तरह कोई इलेक्ट्रॉन 5th से 1 पे आता हो, सिमिलरली 6 से 1 पे आता हो, 7 से 1 पे, 8 से 1 पे, एंड सिमिलरली इंफिनिटी से 1 पे आ रहा है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से फर्स्ट शेल पे वापस आता है, तो ये जो कलेक्शन होती है रेडिएशंस की, इन्हें बोलते हैं लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज को हम आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये
अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। ऐसी कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से फर्स्ट शेल पे रिटर्न होता है तो इसे लाइमन सीरीज के नाम से बुलाते हैं। इसी तरह अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से सेकंड शेल पे आता है, लेट्स से थर्ड से सेकंड पे आ गया, ये भी हो सकता है कि फोर्थ से सेकंड पे आ गया, लेट्स से फिफ्थ से सेकंड पे आ गया, या सिक्स से सेकंड पे आ गया, सिमिलरली 7 से सेकंड पे आ गया और 8 से सेकंड पे आ गया, या इंफिनिटी से सेकंड पे आ गया। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से सेकंड शेल पे रिटर्न होता है तो इस तरह की कलेक्शन को बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज को हम देख सकते हैं क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाया करती है। तो ऐसी कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से सेकंड शेल पे रिटर्न होता है, इस कलेक्शन को बामर सीरीज के नाम से बुलाते हैं। अब किसी को आगे समझते हैं। लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से थर्ड शेल पे वापस आता है, या सिक्स से रिटर्न होकर वापस थर्ड पे आ रहा है, या 7 से रिटर्न होकर थर्ड पे आ रहा है, या किसी भी हायर शेल से रिटर्न होकर थर्ड शेल पे आता है। तो यहां आपने देखा इलेक्ट्रॉन हर बार हायर शेल से रिटर्न होकर थर्ड पे आता है। इस तरह के कलेक्शन को बोलते हैं पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन होता है। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल पे वापस आता है तो इसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। इसको भी हम नहीं देख सकते क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन होता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल पे वापस आता है तो इसे बोलते हैं पिफंड सीरीज। इसको भी हम नहीं देख सकते क्योंकि ये भी इंफ्रारेड रीजन होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने सीखा कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर शेल से लोअर शेल पे वापस आता है तो उसकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है। और अब हम बात करते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला की। अभी हमने सीखा कि डेल्टा ई को निकालने का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा ई को निकालने का फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा। लेट्स से इन दोनों फॉर्मूला को हम इक्वेट कर देते हैं। सो वी कैन राइट इट एज hc/लैम्डा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। सो 1/लैम्डा को हम लिख सकते हैं 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय h इंटू सी, दैट इज 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। 1/लैम्डा को हम बोलते हैं न्यू बार, दैट इज वेव नंबर। 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय h की वैल्यू रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁸ इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जब हम इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो इस वैल्यू को रिडबर्ग ने अपना नाम दिया, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसे RH से डिनोट करते हैं इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसे बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, वेयर सारी बातों का मतलब पता होना चाहिए। इस वैल्यू को हम बोलते हैं वेव नंबर। n1 का मतलब होता है लोअर एनर्जी लेवल, n2 का मतलब होता है हायर एनर्जी लेवल, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और RH का मीनिंग होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। इस RH की वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसी से हम बनाते हैं लाइमैन फॉर्मूला। अभी हमने सीखा न्यू बार का फॉर्मूला बनता है RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर।
लाइमन सीरीज के लिए हर बार इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आके रुकता है, इसका मतलब एवरी टाइम n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और n2 की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हम कह सकते हैं न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, वेयर n की वैल्यू होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। अब इसी तरह हम बनाते हैं बामर फॉर्मूला। सो न्यू बार का फॉर्मूला होता है RH इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। जब हम बामर सीरीज की बात करते हैं तो एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आके रुकता है, तो इसका मतलब n1 की वैल्यू 2 हो जाती है और n2 की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 2, दैट इज 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। दोनों वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हम बना सकते हैं न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, वेयर n का मतलब हो जाता है 3, 4, 5, 6, 7 टिल इंफिनिटी। जैसे हमने लाइमन फॉर्मूला एंड बामर फॉर्मूला बनाया, इसी तरह से आप बना सकते हैं पास्चन फॉर्मूला और ब्रैकेट फॉर्मूला और पिफाइंड फॉर्मूला और इनकी एक्सप्रेशन हो जाती है न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। इसी तरह ब्रैकेट फॉर्मूला बनता है न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। सिमिलरली पिफाइंड फॉर्मूला बनता है न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला मेकिंग क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की। सो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो यहाँ बात कर रहे हैं हीलियम प्लस की। इसके लिए z की वैल्यू हो जाती है 2, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, इसका मतलब n की वैल्यू 1। फॉर्मूला सोचेंगे E1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज जूल पर एटम। अब इसी तरह से हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस के लिए हमें बताया गया है, अगेन रेडियस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, दैट इज 0.529 इंटू n की वैल्यू हमारे पास है 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय z की वैल्यू हमारे पास है 2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से हमारे पास रेडियस आती है जिसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स 5। तो हमें n की वैल्यू 5 बताई है टू n इक्वल्स 2 एंड दूसरे n की वैल्यू हमें 2 बताई है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि जो भी छोटी वैल्यू होती है उसे हम n1 मानेंगे और जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम n2 मानेंगे। हाइड्रोजन की बात हो रही है जिसके लिए z की वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहले हम डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। इसका मतलब होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18
इंटू 1/4 माइनस 1/25 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 25 माइनस 4, जिससे हम डायरेक्टली 21 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 25 इंटू 4। इसे सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से हमारे पास यूनिट आती है जूल पर एटम। अब ये हमने डेल्टा ई निकाला है। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, डेल्टा ई को इक्वेट करते हैं एच न्यू से, तो न्यू की वैल्यू आती है एच अपॉन डेल्टा ई। एच की वैल्यू आप जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय डेल्टा ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां से हम डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर देंगे और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, जिसकी यूनिट होगी हर्ट्ज। इसी तरह से हम बात करते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू हो जाती है एच सी अपॉन डेल्टा ई। एच की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय डेल्टा ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से हमारे पास यूनिट आती है मीटर्स। तो हमने देखा कि कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेल्टा ई को कैलकुलेट करना है। उस डेल्टा ई की वैल्यू से हम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को दोनों को इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन n=4 to n=2 फॉर हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो एक तरफ हमसे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की एंड दूसरी तरफ हमसे बात कर रहे हैं हीलियम प्लस की। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू 2 होती है। यहाँ पे N1 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, N2 की वैल्यू भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों ही बातें हमें नहीं पता और यही दोनों N1 N2 हमें कैलकुलेट करनी है। वाइल हीलियम प्लस के केस में हमें N की वैल्यू 4 बताई है, साथ में दूसरे N की वैल्यू 2 बताई है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जो छोटी वैल्यू होती है उसे N1 लेते हैं और बड़ी वैल्यू को हम N2 लेते हैं। दोनों में एक टर्म बोली गई है कि जो हमारे पास लैम्डा हाइड्रोजन है वही हमारे पास लैम्डा हीलियम प्लस है। तो चलो इस वैल्यू को हम सिर्फ लैम्डा ही बोल देते हैं, तो ये वैल्यू भी हमारे पास लैम्डा हो जाती है। दोनों केसेस में हम लगाते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, that is 1/lambda h is equal to RH into 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। लैम्डा h की वैल्यू हमने लैम्डा ही मानी है, दैट इज RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है जिसे हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आती है। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, 1/लैम्डा हीलियम प्लस इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 2 का स्क्वायर। इस वैल्यू को लैम्डा ही माना गया है, आर एच। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है 3/4। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन 1/लैम्डा की वैल्यू ही बता रही हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेते हैं। सो वी कैन राइट इट एज आर एच इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू आर एच। तो आप देख रहे हैं आर एच वैल्यू से आर एच वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है और हमारे पास आता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो अब ये वैल्यू कब पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि जब हम लिखेंगे इसे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर तो ये वैल्यू 3/4 आएगी। चेक कर लीजिए, 1/1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4।
तो ये हमने चेक किया और ये 3/4 वैल्यू तभी आ सकती है जब n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू 2 होगी। अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो यहां हमसे बात हो रही है हाइड्रोजन की। इसके लिए z की वैल्यू 1 होती है और एक टर्म यूज की गई है दैट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब बनेगी जब शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो इसका मीनिंग हो जाता है hc बाय लैम्डा, हम डेल्टा ई के प्लेस पर hc बाय लैम्डा रख रहे हैं, 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। और वी कैन राइट इट एज 1/λ is equal to 2.18 into 10⁻18 डिवाइड बाय hc इंटू n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। सो लैम्डा की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर का जो डिफरेंस है ये वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है। तो हमने देखा जितना ये डिफरेंस कम आएगा उतना लैम्डा की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। अब इसको रिवर्स वे में बोल सकते हैं हम। इसी तरह अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो उसकी क्या ट्रिक होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तभी कैलकुलेट होती है जब लॉन्गेस्ट पाथ होता है। इसका मतलब हुआ अगर हमें लैम्डा की वैल्यू को कम से कम बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये मैक्सिमम तभी हो सकती है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से, लेट्स से इन्फिनिटी से लोअर शेल की ओर आता है, तभी उनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम बनेगा। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज हमें कैसे मिलेगी? इसके लिए जरूरी है शॉर्टेस्ट पाथ होना, और शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल पे वापस आएगा, क्योंकि बामर सीरीज में हर बार इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे वापस आता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाती है n1, ये वैल्यू होती है n2। वेव नंबर का फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। तो इसका मीनिंग हो जाता है RH इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RH इंटू 1/4 माइनस 1/9। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज RH इंटू 5/36। RH की वैल्यू रखकर इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n = 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो हमें निकालनी है कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 इंटू 6-1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 15 लाइंस। अब हम देखते हैं ये 15 लाइंस कैसे बनी होंगी। तो ये हमारे पास है n equals 1. Similarly, we have n equals 2. We have n equals 3. We have n equals 4. We have n equals 5. We have n equals 6. तो इनको मार्क कर देते हैं। n equals 1, n equals 2, n equals 3, n equals 4, n equals 5, n equals 6। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन
6 शेल से सीधा फर्स्ट शेल पे आता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो 6 से सेकंड पे आता है, या 6 से थर्ड पे आता है, या 6 से 4 पे आता है, या 6 से 5 पे आता है। अब 5 पे आने के बाद वो वापस 1 पे जाता है। ये भी हो सकता है 5 से 2 पे जाता है, 5 से 3 पे जाता है, ये 5 से 4 पे जाता है। अब जब 4th पे आ गया तो 4 से 1 पे जा सकता है, 4 से 2 पे जा सकता है, 4 से 3 पे भी जा सकता है। जब 3rd पे आया है तो ऐसा भी हो सकता है कि 3rd से 1 पे जाए, 3rd से 2 पे जाए, या फिर लास्ट पॉसिबिलिटी है कि वो 2 से 1 पे जाए। तो जब n इक्वल 6 से n इक्वल 1 पे जाता है तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो इनको हम काउंट कर लेते हैं। ये है फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉसिबिलिटी, 6, 7, 8, 9 पॉसिबिलिटी, 10, 11, 12 पॉसिबिलिटी, 13, 14 पॉसिबिलिटी, एंड दिस इज लास्ट वन 15 पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 15 लाइंस पॉसिबल हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स 6 से n इक्वल्स 1 पे आता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। और अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। जैसा कि नील बोर ने बताया कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल पे जाता है और हायर शेल से वापस जब लोअर शेल में आता है तो उससे बहुत सारी सीरीज बनती हैं। हमने अभी देखा कि लाइमन सीरीज, पामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ये सभी सीरीज के नाम हैं जो हमें हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मिलते हैं। इसी तरह हम दूसरे सब्सटेंस के लिए भी स्पेक्ट्रल लाइंस को कलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम से बुलाते हैं। सपोज हमारे पास ये एक वाइट लाइट का सोर्स है, ये लाइट सभी डायरेक्शंस में मूव कर रही है। हम चाहते हैं ये एक ही डायरेक्शन में जाए, तो इसके लिए हमने एक स्लिट लगा दी। तो स्लिट का तरीका है कि हमने कार्डबोर्ड में छोटा सा होल कर दिया है जिससे लाइट अब इस होल से पास होती है। जब वाइट लाइट होल से पास होती है तो इसे हम प्रिज्म पे पास करते हैं। जब ये प्रिज्म पे जाती है तो उसके बाद इसका डिस्पर्जन हो जाता है और हमें 7 कलर्स मिल जाते हैं। इस तरह से कलेक्टिवली हमें सारे कलर्स विजिबल रीजन के मिल गए। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम एंड दूसरे होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। जैसा कि हमने देखा, एक सोर्स है लाइट का, व्हाइट लाइट को बाहर निकालता है। हमने इसके आगे स्लिट लगाई है जिसमें छोटा सा होल करा है और अब इस होल से लाइट निकलती है। ये लाइट जब प्रिज्म में पड़ती है तो इसका डिस्पर्जन हो जाता है और हमें डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूसली सारे कलर्स मिल रहे हैं, इसीलिए इसे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक पर्टिकुलर मेटल को हीट किया, लेट्स से हमारे पास आयरन मेटल है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये रेड लाइट प्रोड्यूस करता है। इसे हम स्लिट से पास करते हैं, इसमें हमने छोटा सा होल लिया है, यहाँ से ये रेड लाइट पास हो रही है, इसे प्रिज्म से पास करते हैं और हमें एक ही कलर मिलता है। जब हमें एक ही कलर की लाइट मिलती है तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से बुलाते हैं। तो हमने देखा कि एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसमें सारे कलर्स मिलते हैं और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम जिसमें पर्टिकुलर एक ही कलर की लाइट हमें मिलती है। और अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। हमारे पास एक सोर्स है लाइट का, ये लाइट सभी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है। हमने इसके आगे एक स्लिट लगाई है, अब इस छोटे से होल से लाइट निकलती है। इस लाइट को प्रिज्म से पास करने से पहले हम इसे एक सॉल्यूशन से पास करते हैं। हमें जब इस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कुछ कलर्स लाइट के इस सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ रिमेनिंग कलर्स ही बाहर निकलते हैं और जब वो प्रिज्म पड़ते हैं तो उन रिमेनिंग कलर्स का ही डिस्पर्जन हमें मिलता है। मान लेते हैं कि हमें विबग्योर में से
दो कलर्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, O और R हमने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें डिसकंटिन्यूअस कलर्स मिल रहे हैं और इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपने देखा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक एमिशन, एक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्योंकि सॉल्यूशन ने कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और इसलिए इसमें हमें डिसकंटिन्यूअस कलर्स मिले एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। इस मॉडल ऑफ एटम को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है श्रोडिंगर और इसीलिए इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं। श्रोडिंगर ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है और उस वेव की इक्वेशन को हम जाय से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं जाय that depends upon x axis, y axis, z axis which is equal to 0। तो जाय ये एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जब हम जाय का स्क्वायर करते हैं तो ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहाँ मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं जाय स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। श्रोडिंगर ने बताया कि जब भी हमें किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें जाय को दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमारे पास इक्वेशन आती है डेल जाय स्क्वायर डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जाय स्क्वायर डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जाय स्क्वायर डिवाइड बाय डेल z स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल का मतलब है डिफरेंशिएशन। अगर हम दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं डेल जाय स्क्वायर। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं डिफरेंशिएशन तो इसे बोलेंगे डेल जाय स्क्वायर डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमने जाय को डबल डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली डबल डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y एंड डबल डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू z प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय h इंटू e माइनस v इंटू जाय इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आती है इस इक्वेशन को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ऑल्दो हमें इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, बस हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर जाय का क्या मतलब है, m का क्या मीनिंग है, h क्या होता है। ये सभी टर्म्स हमने पहले पढ़ रखी है, एक बार फिर समझ लेते हैं। डेल z स्क्वायर डिवाइड बाय डेल x स्क्वायर, इसका मीनिंग होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जाय विद रिस्पेक्ट टू x। डेल z स्क्वायर डिवाइड बाय डेल y स्क्वायर, इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जाय विद रिस्पेक्ट टू y। डेल जाय स्क्वायर डिवाइड बाय डेल z स्क्वायर, इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जाय विद रिस्पेक्ट टू z। m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h मींस प्लैंक्स कांस्टेंट, E का मतलब होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी और जाय का मीनिंग होता है वेव फंक्शन। अब हम बात करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स की। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि हमारे पास y एक्सिस है जिस पर जाय प्लॉट है और x एक्सिस पर रेडियस प्लॉट है। तो यहाँ पे ये ग्राफ हमने 1s के लिए बनाया है। ये ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे जाय की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट पे आके जाय की वैल्यू सबसे कम हो जाती है। ये ग्राफ 2s के लिए बनाया गया है। y एक्सिस पर हमने जाय को प्लॉट किया है और x एक्सिस पर r को प्लॉट किया है। अगेन हम देख रहे हैं रेडियस के इंक्रीज होने पर जाय की वैल्यू लीस्ट हो जाती है, लेकिन इसके जस्ट बाद अब जाय इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि ग्राफ 2s के लिए है तो यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके जस्ट बाद अब ये 2s की वैल्यू को बता रहा है। इसी तरह अगर हम ग्राफ बनाते हैं जाय स्क्वायर के लिए जो कि हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो यहां से पता लगता है कि रेडियस इंक्रीज होने पर एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर प्रोबेबिलिटी हमारी कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो ये ग्राफ 1s के लिए बनाया गया है। वाइल 2s के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक रेडियस इंक्रीज होती है तो इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाती है और जैसे ही ग्राफ आगे प्लॉट होता है
अब इस ज़ाई स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होकर वापस एक कांस्टेंट नंबर पे आ जाती है। तो अगर हम देखें, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो पार्ट है जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें बता रहा है 1s ऑर्बिटल के बारे में। अब इसके जस्ट बाद थोड़ा स्पेस खाली है, यहां फिर से हम ये पाथ दिखा रहे हैं। ये पार्ट हमें बता रहा है 2s के बारे में। अगर हम इसको बोल रहे हैं 1s, तो इस पोर्शन को बोलेंगे 2s। ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं नोड या फिर नोडल प्लेन। सो नोड या नोडल प्लेन वो एरिया होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 0 होते हैं। Whereas orbital is the place around the nucleus in a 3D space where the probability of finding electron is maximum. So nodes कितने टाइप के होते हैं? नोड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेडियल नोड्स और दूसरे होते हैं प्लेनर नोड्स। Calculate radial nodes and planar nodes in 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। तो यहां हम बात कर रहे हैं रेडियल नोड्स की, यहां हम बात कर रहे हैं प्लेनर नोड्स की, और यहां बात करेंगे टोटल नोड्स की। रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, दैट इज n माइनस l माइनस 1। ये वैल्यू होती है l, और अगर हम दोनों का सम कर दें तो ये वैल्यू बन जाती है n माइनस 1। अब आंसर्स देखते हैं। तो 1s के लिए अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाती है 1, s की वैल्यू हो जाती है 0, और रेडियल नोड्स हमारे पास कैलकुलेट होते हैं, दैट इज 1 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 0। आपने देखा अभी कि 1s में कोई भी नोड नहीं होता है। इसी तरह हम बात करते हैं प्लेनर नोड्स की, तो क्योंकि s की वैल्यू 0 है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लेनर नोड 0 हो जाते हैं। अगर टोटल नोड्स बात करें, दैट इज 1 माइनस 1, 0। तो फर्स्ट शेल में जिसके पास एक ही सब शेल है s और एक ही ऑर्बिटल है, उसमें कोई भी नोड नहीं होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 2s के लिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 2 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 1। प्लेनर नोड्स की वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि s के लिए हमेशा l 0 होता है। एंड टोटल नोड्स निकालते हैं, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 1। इसी तरह अब हम 2p के लिए सोचेंगे, तो 2p के लिए n की वैल्यू हो जाती है 2 और l की वैल्यू हो जाती है 1। रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 2 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 0। और अगर हम प्लेनर नोड्स निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 1। अगर हम टोटल नोड्स की बात करते हैं, दैट इज 2 माइनस 1 अगेन 1। सिमिलरली हम 3s के लिए निकाल सकते हैं, 3p 3d के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे हम नोडल प्लेन एंड ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकते हैं। नोडल प्लेन वो एरिया होता है जहां किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 0 होते हैं, वाइल ऑर्बिटल वो एरिया है जहां किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस बना? ऑर्बिट शेल को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक सर्कुलर शेप में होता है। ऑर्बिट के अंदर हर बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 18 होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकता है। ऑल्दो सभी ऑर्बिट्स की शेप सर्कुलर कंसिडर होती है, लेकिन ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट हो जाती है, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा है।
एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, पी की शेप होती है डम्बेल, डी की शेप होती है डबल डम्बेल। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।